بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل برین بوسٹر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہجرت مدینہ کیوں پیش آئی، ہجرت مدینہ کا مفہوم کیا ہے، ہجرت مدینہ کیوں پیش آئی، ہجرت مدینہ کرتے ہوئے کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کام کیے تھے، وہ کام کن کے ذمے لگائے تھے، اور ہجرت مدینہ کرتے ہوئے وہ کن کن مشکلات کا سامنا کر کے مدینہ جا پہنچے تھے۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفٹر نبوت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس میں ہم نے اوور ویو باقی ساری چیزوں کا پڑھا تھا، لیکن ڈیٹیل میں ہم نے یہ بس دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کون کون آپ کے دشمن ہو گئے تھے، کون آپ کے ساتھیوں میں شامل تھے، اور کن لوگوں نے آپ کے ساتھ مطلب کہ آپ پہ مظالم کیا تھے، کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہجرت کا مطلب حکم آیا تھا، مکہ والوں کے جب ظلم بڑھ رہے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ الگ الگ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، سازشیں رچی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ تو دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ کا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے بیسیکلی، لیکن یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے۔ لیکچر 7 جو تھا وہ کل ہمارا ہو گیا ہے، آج ہم نے لیکچر نمبر 8 پڑھنا ہے۔ یہ جب میں نیکسٹ فائل کمپائل کروں گی نا، اس کے ساتھ پھر اس کو سیٹ کر دوں گی یہ لیکچر، ٹھیک ہے۔ یہ لیکچر نمبر ہمارا 8 ہے، ٹھیک ہے، 8 ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی بقا، فروغ اور اسلامی ریاست کے قیام کی بنیاد ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو مذہبی آزادی، سیاسی استحکام اور معاشرتی امن حاصل ہوا۔ اسی واقعے کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا تھا، وہ بھی ہجرت مدینہ سے یعنی کہ کیا تھا۔ یعنی انہوں نے کیا، حضرت عمر نے جو اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا تھا وہ اپنے دور حکومت میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ انہی کے ٹاپک میں پڑھیں گے، تو لیکن جو اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلامی ہجری کیلنڈر جو تھا وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، تو حضرت عمر نے کروایا تھا۔ اور یہ کب سے سٹارٹ ہوا تھا؟ انہوں نے جو ہجرت جب ہوئی تھی نا، تب سے انہوں نے وہ تاریخ تب سے سٹارٹ کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجرت مدینہ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہجرت کا مفہوم۔ ہجرت عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہجر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چھوڑ دینا، علیحدگی اختیار کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے وطن، مال اور عزیزوں کو ترک کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی حفاظت کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت کا مفہوم پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہجرت کس زبان کا لفظ ہے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کس زبان سے نکلا ہے؟ ہجر سے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب بھی پوچھا جاتا ہے، اس کا مطلب پوچھا گیا ہے کہ ہجرت کا کیا مطلب ہے، تو چھوڑنا، علیحدگی اختیار کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہجرت مدینہ کی وجوہات، یعنی ہجرت کی کیا وجوہات تھی، کیوں ضروری ہوئی کہ مطلب یہ بات ضروری ہو گئی کہ ہجرت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے مکہ میں ظلم و ستم۔ قریش مکہ جو تھے وہ مسلمانوں پر شدید مظالم کرتے تھے، جسمانی تشدد، معاشی بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ، قید و بند، قتل کی دھمکیاں، یعنی کہ جن تک ان کو رسائی حاصل تھی، جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ پھر جو مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت سے لوگ، یعنی کہ حضرت ابو طالب اور وہ سارے ان کے سامنے آ جاتے تھے، تو ان کو تو وہ کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، لیکن ان کا غصہ جو تھا وہ پھر باقی جو صحابہ جو ایمان لائے تھے، جو کسی کے گھر میں کوئی غلام تھا، کوئی کسی کے مطلب کہ وہ لوور کلاس کے جو تھے، ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو قید کیا جاتا تھا، غلام ہوتے تھے ان کو قید کیا جاتا تھا، یا کوئی لوور کلاس کے ہوتے تھے تو ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دین کی تبلیغ میں رکاوٹ۔ مشرکین اسلام کی دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہجرت کی وجوہات، یعنی ہجرت کیوں ضروری تھی، تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں پر، دوسرا دین کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، تیسرا اہل یثرب کی دعوت، اہل یثرب
यानी यसरब मदीना को कहते हैं। तो मदीना में रहने वाले जो अंसार आए थे, जो आते थे यहाँ पे तिजारत करने, उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। बैत अक़बा वाला कल हमने थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दिया था। तो वो ये था कि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, उनके कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम मदीना में तेज़ी से फैलता जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार दावत दी, जिसकी वजह से जब यहाँ के हालात ख़राब हुए तो अल्लाह ताला ने इनको हिजरत करने का हुक्म दिया कि मदीना की तरफ चले जाए। यसरब मदीना यानी कि मदीना के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी। तो इस वजह से एक वजह ये भी थी, ठीक है। उसके बाद है पहली बैत उक़बा, ये कल हमने डिटेल से इसको पढ़ा है। इसे 11 नबी को हुई थी, 12 अफराद ने इस्लाम कबूल किया था। दूसरी बैत उक़बा जो है 13 नबी को हुई थी, यानी उसके अगले साल ही हुई थी, मतलब 1-2 साल बाद। अच्छा, और ये जो है ये तकरीबन इसमें 73 मर्द और 2 औरतें शरीक हुई थी। मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया। ये बैत हिजरत की बुनियाद बनी थी, ठीक है। ये बैत जो थी ये हिजरत की बुनियाद बनी थी। मदीना का पुराना नाम यसरब था। इस्लाम आने के बाद इसे मदीनतुल नबवी, मदीना मुनव्वरा कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों की तदरीजी हिजरत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मदीना हिजरत करने लगे। तकरीबन तमाम मुसलमान मदीना मुंतकिल हो गए। सिर्फ चंद अफराद मक्का में बाकी रहे, जिनमें से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत अली और नुमाया थे, ठीक है। हज़रत अली, ये 3 नाम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो फिर इनको हज़रत अली को अमानतों के लिए भी छोड़ के आए थे। नेक्स्ट देखते हैं कुरैश की साजिशें। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीना मुंतकिल हो रहे हैं तो उन्होंने दारुल निदवा में मशवरा किया। मुख्तलिफ तजावीज़ पेश हुई और उन्होंने ये मतलब कि ये दारुल निदवा में ये भी कहा जाता है, पूछा जाता है कि कहाँ पे कुरैश जो साजिशें करते थे वो कहाँ पे करते थे, दारुल निदवा में। तो उन्होंने मुख्तलिफ सब ने अलग अलग मशवरा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया जाए, वो किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें कत्ल कर दिया जाए, इनको कैद किया जाए, अच्छा, और इनको जला वतन यानी वतन से निकाला जाए। आखिरकार अबू जहल की तजवीज़ मंजूर हुई कि इन्हें हर कबीले का एक एक नौजवान मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे ताकि खून का बदला किसी एक कबीले से ना लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्लाह ताला की हिफाजत। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन साजिशों से आगाह फरमा दिया। हज़रत अली का अजीम किरदार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। हज़रत अली ने अपनी जान खतरे में डालकर यह जिम्मेदारी अदा की। इस रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत घर से निकल गए। गारे सोर का सफ़र। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक सफ़र हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ जनूब की तरफ रवाना हुए, ठीक है। जनूब की तरफ यानी वो रवाना हुए थे। और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये यमन की तरफ से गए थे। ये डायरेक्ट मदीना डायरेक्ट जो रास्ता था उससे नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पे मुहासरा कर रहे थे जो कुफार मक्का थे, तो इस वजह से ये पिछले रास्ते से गए थे। इन्होंने गारे सोर में तकरीबन 3 रातें गुजारी। गारे सोर के अहम वाक़यात। गारे सोर में जब ये थे तो मकड़ी है ना, उसने वहाँ पे जाला बना दिया ताकि अगर कोई आए और गार में आने की मतलब देखने की कोशिश भी करे तो वो जब जाले वगैरह होंगे तो वो पुरानी नहीं लगेगी, मतलब कि ये पुराना है, यहाँ पे कोई नहीं आया, तो इस तरह से ये होगा कि वो बचाव हो जाएगा। अल्लाह ताला ने गार के दहाने पर मकड़ी से जाला बनवा दिया, यानी ऑब्वियसली मकड़ी ने जब जाला बनाया तो अल्लाह के हुक्म से ही बनाया होगा। कबूतरों का घोंसला, यानी गार के दरवाजे पर कबूतरों ने अंडे दे दिए और घोंसले बना के उसमें अंडे दे दिए, तो इससे मज़ीद कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। हज़रत अबू बकर सदीक़ की फ़िक्र। जब दुश्मन करीब पहुँच गए तो हज़रत अबू बकर सदीक़ को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की फ़िक्र हुई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और ये जो आयत आई है ये सूरत तौबा में आयत नंबर 40 है, उसका तर्जमा है। अच्छा, ये भी एक चीज़ पूछी जाती है कि हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत पढ़ रहे थे, तो वो सूरत यासीन पढ़ रहे थे, ठीक है। फतह मक्का के टाइम पे भी सूरत यासीन पढ़ रहे थे और हिजरत के टाइम पे भी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर
رات کے وقت مکہ کی خبریں غار میں پہنچاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس مکہ میں کیا کیا چل رہا ہے وہ رات کے ٹائم چھپتے چھپاتے آ کے ان کو وہ تازی مطلب جو بھی خبریں ہوتی تھی، جو بھی وہاں پہ مطلب چل رہا ہوتا تھا، وہ سارے کچھ آ کے ان کو بتاتے تھے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر، حضرت اسما جو کہ حضرت ابو بکر کی چھوٹی بیٹی تھی، انہوں نے مطلب سب سے چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بیٹی یہ تھی، حضرت اسما جو تھی وہ بڑی بیٹی تھی، چھوٹی تو عائشہ تھی، تو وہ ان کے لیے کھانا لاتی تھی، کھانا پہنچاتی تھی، اپنی چادر پھاڑ کر کھانے کا تھیلا باندھا، اور اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ یہ لقب پوچھا جا سکتا ہے، ویسے کبھی پوچھا نہیں ہے، میں بھی پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عامر بن فہیرہ یہ ابو بکر کا غلام تھا، یہ بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرا کر قدموں کے نشان مٹا دیتا تھا اور اسی سائڈ پہ آتا تھا، اور حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نکال کے پیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اریکہ اگرچہ مسلمان نہیں تھے، جو عبداللہ بن اریکہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ ایک بہت اچھا جغرافر تھا، کیونکہ وہ صحرا اور پہاڑی علاقہ تھا تو اس میں راستے وغیرہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو اس وجہ سے جو جغرافیہ وغیرہ ہوتے تھے انہوں نے پتہ ہوتا تھا کہ راستہ کس سائڈ پہ اور کیسے کیسے جا رہا ہے، تاکہ وہ ڈائریکٹ مطلب کہ باحفاظت مدینہ پہنچ جائے۔ تو پھر اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن انتہائی دیانتدار تھے، انہوں نے راستہ دکھانے کی ذمہ داری ادا کی۔ سراقہ بن مالک کا واقعہ۔ اچھا، قریش مکہ نے ایسا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گئے قتل کرنے کے لیے، تو وہاں پہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، حضرت علی کو دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اتنا کچھ جانتے تو نہیں تھے کہ راستہ، کیونکہ پہاڑی اور صحرا بالکل انجان سا ایسے بالکل راستہ تھا، کوئی اس کی سمجھ نہیں آنی تھی عام انسان کو، تو انہوں نے پھر سراقہ بن مالک سے کہا کہ مطلب ایک دو اور لوگ سے بھی کہا، اس میں سراقہ بن مالک کا نام آتا ہے کہ وہ ایک جغرافیہ تھا، اسے پتہ تھا کہ راستے کس طرح سے اور کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو اس سے کہا کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائیں اور ڈھونڈ کے ان کے حوالے کریں۔ تو ان کو جو ہے وہ 100 جو لال اونٹ ہوتے ہیں، تب کسی کے پاس اس زمانے میں اگر کسی کے پاس ایک بھی لال سرخ کلر کا اونٹ ہوتا تھا تو سب سے امیر تمیر شخص مانا جاتا تھا، تو انہوں نے انعام رکھا تھا کفار مکہ نے کہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس پکڑ کے لائے گا تو اس کو ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو تب جو ہے یہ سراقہ بن مالک جو ہے مالک کا واقعہ آیا۔ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر انعام رکھا، ایمان مقرر کیا۔ سراقہ بن مالک نے پیچھا کرتے ہوئے آئے اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ بار بار زمین میں دھنس جاتا تھا، انہوں نے معافی مانگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت دی جو حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی تھی۔ اچھا، اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سراقہ بن جو مالک تھا، یہ جب وہاں سے اس انعام کی لالچ میں وہاں سے بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور آخر کار یہ ان تک پہنچ گیا۔ اچھا، جیسے ہی وہ غار تک آیا، کیونکہ غار کے قریب پہنچا تو ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گر پڑا، اور ڈائریکٹ اس نے نیچے گرا تو اوبیسلی اوپر سے تو لوگ دیکھ کے چلے جاتے تھے، نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، وہ نیچے گرا تو اس کی نظر پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہے وہ غار کے اندر ہے، تو اس نے مطلب کہ اپنے گھوڑے پہ چڑھ کے، مطلب وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا، وہ گھوڑے پہ چڑھ کے ان کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑا جو اس کا ہے وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جیسے وہ گھوڑا باہر نکلا پھر اس نے وہی حرکت کی، تو پھر سے گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی، تو اس واقعے کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ مستقبل میں آپ جو ایران کا بادشاہ ہے کسریٰ، اس کے کنگن، یعنی کہ ایران کا بادشاہ مرے گا اور اس کے بعد اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، جو کہ پھر حضرت عمر کے دور میں جا کر ایسا ہی ہوا تھا، ایران کا بادشاہ بنا تھا اور سراقہ بن مالک کو پھر اس تخت پہ بٹھایا گیا تھا۔
تو ان کو یہ بشارت دی تھی، اور یہ بندہ ایمان لے آیا تھا، اور واقعی یہ مطلب کہ وفاداری نکلا تھا۔ واپسی جا کے اس نے قریش مکہ والوں سے کہا کہ مطلب وہ مجھے کہیں نہیں ملے، مجھے نہیں پتہ کہ وہ، اور یہ بھی بتایا کہ اس سائڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے تاکہ کوئی اور دوسرا نہ جائے اور ان کے مطلب کہ ان کو دیکھ نہ لے۔ تو اس طرح سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ہے قبا میں قیام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے قبا میں چند دن قیام فرمایا۔ مطلب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قبا جو تھی وہ مدینہ کے پاس ایک بستی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سب سے پہلے پہنچے تھے، یعنی مدینہ کی حدود میں چلے گئے تھے لیکن مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو اس سے پہلے ہی رہ گئے تھے۔ تو وہاں پہ پھر 1-2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں پہ ایک مسجد قائم کی تاکہ اس میں اسلامی تعلیمات دی جا سکے یا نماز پڑھی جا سکے باقی چیزوں کے لیے۔ تو پھر یہ تھا کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی تھی، تو مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام مکہ مکرمہ ہے، لیکن جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں چند دن قیام فرمایا، یہی اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مدینہ میں تاریخی استقبال۔ مدینہ کے مسلمانوں نے انتہائی محبت سے استقبال کیا، بچے، خواتین اور مرد سب خوشی سے باہر نکل آئے۔ مشہور استقبالی کلمات یہ تھے: طلع البدر علینا، ٹھیک ہے، طلع البدر علینا، یعنی کہ یہ اس طرح سے انہوں نے مطلب کہ عربی میں یہ ورڈ ہے، تو اس طرح سے ویسے یہ پوچھا نہیں جاتا، بس زیادہ نہیں پوچھا جاتا، ہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ استقبال کے لیے کون آئے تھے مدینہ سے، تو بچے، خواتین، مرد سب آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ یہ عبادت گاہ، عدالت، پارلیمنٹ، تعلیمی ادارہ اور معاشرتی مرکز سب کچھ تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں عبادتیں بھی کی جاتی تھی، اس میں لوگوں کے فیصلے بھی کیے جاتے تھے، اس میں یعنی کہ ایک عدالت کا کام ہوتا تھا، یہ ایک پارلیمنٹ یعنی کہ یہاں بیٹھ کے معاہدے وغیرہ بنائے جاتے تھے، اور تعلیمی ادارہ بھی یہیں پہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسے اسلام کی پھر یونیورسٹی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، اور مشرتی جو بھی مطلب مراکز سب کچھ یہی تھی، مطلب مشرتی معاشی طور پہ کوئی بھی بات چیت کرنی ہوتی تھی یہاں بیٹھ کے وہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس موقعات مدینہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، اس سے معاشی مشکلات ختم ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اتحاد مضبوط ہوا۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا تاکہ کسی ایک بندے پہ برڈن نہ پڑے، اور سارے جو ہے نا وہ مل بانٹ کے الگ الگ گھروں میں مطلب دوسروں کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ مکہ سے جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ سارے خالیات ہی گئے تھے، تو پھر مدینہ والے بھی مطلب کہ اتنے زیادہ کوئی امیر نہیں تھے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ رکھ سکے، کوئی ایک بندہ رکھ سکے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس معاہدے کو موقعات مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا تھا میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلوں سے معاہدے کیے تھے کہ مدینہ پر باہر سے جو بھی کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، سب مل کر مطلب اس کا مقابلہ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھا یہ دنیا کا پہلا، وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو مطلب چارٹر تھا، جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ کون سا ہے، تو وہ میثاق مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا پہلا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا ہے، میثاق مدینہ۔ یہ یہودی قبائل بھی اس میں شامل تھے، اس میں ڈیفرنٹ قبائل شامل تھے جس میں مسلمانوں اور یہودیوں کے قبائل تھے جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے آرٹیکل تھے، تو آرٹیکل کچھ کہتے ہیں 47 ہیں اور کچھ کہتے ہیں 53 ہیں، تو ان دونوں کا ایک ساتھ بھی MCQ دیتے ہیں، یا پھر کوئی ایک اس میں سے اگر آ جائے تو آپ نے 53 یا 47 ان میں سے جو بھی ہو آپ نے اس کو صحیح کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اہم نکات پڑھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں: مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ، مشترکہ دفاع، انصاف، امن، یعنی کہ مدینہ میں امن قائم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے مطابق
इबादत करेगा, सबके जान और माल की हिफाजत एक दूसरे की जिम्मेदारी होगी, और मुश्तरका दिफा यानी बाहर से कोई भी हमला करेगा तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे और मदीना में अमन रहेगा। इसे दुनिया के अव्वलीन तहरीरी आयनों में शुमार किया जाता है। हिजरत के बाद अहम तब्दीलियाँ, इस्लामी रियासत कायम हुई, मुसलमानों को आज़ादी मिली, मस्जिद नबवी तमीर हुई, अजान का आगाज़ हुआ, यानी कि फर्स्ट हिजरी में ही हज़रत बिलाल ने अजान दी थी। और ये भी पूछा जाता है कि हज़रत बिलाल ने कौन सी अजान दी थी, तो फजर की अजान दी थी। इस्लामी माशरा वजूद में आया, ज़कात, जिहाद और दीगर इज्तिमाई अहकाम नाफज हुए, इस्लाम पूरी अरब सरजमीन में तेज़ी से फैलने लगा। यानी इस्लाम जो है पूरी इस्लाम पूरी इस तरह से है कि इस्लाम जो है ना, ये नहीं इस्लाम पूरी कोई जगह का नाम नहीं है, इस्लाम जो है वो पूरी अरब सरजमीन, जितने भी अरब सरजमीन थी मदीना वाली साइड पे, वो उसमें तेज़ी से फैलने लगा था और मक्का की तरफ भी बढ़ने लगा था। हिजरत के नताइज, इस्लामी रियासत का क़याम, मुसलमानों को मजहबी आज़ादी, इस्लाम की सियासी क़ुव्वत में इजाफा। ओबियसली जब मतलब कि इस्लाम ज़्यादा लोग कबूल करेंगे तो ओबियसली इसमें इनकी ताकत बढ़ेगी, ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो इनके मतलब के लोग जो होंगे साथ देने वाले वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस तरह से इनकी ताकत कुव्वत इनकी बढ़ती जाएगी। मुहाजिर और अंसार का इत्तेहाद, यानी जो भाईचारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, इस्लामी अखुवत की मिसाल कायम हुई, इस्लाम की तबलीग आसान हुई। और क्योंकि लोग ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वो फिर ऐसा नहीं करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे या कोई उनके करीबी साहबा आएंगे तो फिर आगे से तलीम देंगे, नहीं, वो जहाँ भी जो तलीम सुन के, इसीलिए तो कहते हैं कि आप अगर कोई अच्छी बात सुनो तो उसको आगे फैलाओ, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैसेज है या मतलब कुरान पाक का तर्जुमा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है तो आगे पहुंचाओगे तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो सहाबा भी यही करते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे आगे फिर लोगों में वो फैलाते थे, और इस तरह से इस्लाम की तबलीग आसान हो गई, किसी एक बंदे पे नहीं रह गई थी, बल्कि सब मिलजुल कर वो काम कर रहे थे, इस्लामी तलीम को फैला रहे थे। इस्लामी तहजीब की बुनियाद रखी गई, मुसलमानों को दिफाई कुव्वत हासिल हुई, मशरती इंसाफ कायम हुआ, इस्लाम आलमी दीन के तौर पर उभर कर सामने आया। कुरान मजीद में हिजरत की अहमियत क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हिजरत करने वालों की फजीलत बयान फरमाई है और इन्हें अजीम अल अजर की बशारत दी है। और ये जो हिजरत के सारे वाक़यात और हिजरत के बारे में क्या क्या अजर है वो सारा सूरह तौबा, सूरह अनफाल, सूरह निसा और सूरह हश्र में बताया गया है, ठीक है। इसमें मुहाजिरीन की फजीलत और कुर्बानियों का जिक्र भी मौजूद है, क्योंकि अंसार जो थे उन्होंने घर बार तो नहीं छोड़ा था, वो तो मदीना के रिहायशी थे ऑलरेडी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पहुँचे, हिजरत करके गए तो मुश्किलात उन पे भी आई, उन्होंने भी ये मुश्किलात झेली थी, उनके भी नुकसान हुए थे, लेकिन मुहाजिरों की तरह किसी का नुकसान नहीं हुआ था। मुहाजिरीन जो थे ये मक्का से अपना सब कुछ छोड़ के गए थे, सब कुछ छोड़ के, जान माल, यहाँ तक कि अपने जिनके मतलब के ऐसा था कि कुछ लोगों के फैमिली में से ज़्यादा किसी ने नहीं वो किया था, इस्लाम कबूल किया था, कोई एक आधा कर लेता था, कोई दो लोग कर लेते थे, तो वो उन्हें अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को भी छोड़ के जाना पड़ा था। तो मुहाजिरीन का मतलब ज़्यादा कुर्बानियाँ मुहाजिरीन को देनी पड़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्तहानी अहम निकात से, जो मतलब इम्तहान के जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो अलग से ये है, यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। हिजरत मदीना कब हुआ? 622 में हुई, ठीक है, हिजरत मदीना 622 में हुई, और जो नबुवत का आगाज़ हुआ था वो 610 में हुआ था, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। हिजरत मदीना 13 नबवी में हुई थी, ठीक है, और नबुवत का आगाज़ 10 नबवी में हुआ, और ये जो हिजरत हुई थी ये 13 नबवी में हुई थी, बल्कि नहीं, ये नबुवत के 13 साल हुई थी, और हिजरत जो है वो इसका नबुवत का आगाज़ जो हुआ था वो 610 AD में हुआ था, ठीक है, ईस्वी जिसे कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास इस्लामी हिजरी सन का आगाज़ हिजरत मदीना से हुआ था। मदीना का पुराना नाम यसरिब था, और गारे शोर में 3 रातें मतलब क्याम किया था। ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ये यसरब वाले, ये गारे शोर वाले, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। गार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर थे, हज़रत अली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए थे, हज़रत अस्मा को ज़ातल नताकीन कहा जाता है, रास्ता दिखाने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन अरीका थे। मक्का से निकलने की साजिश दारुल निदवा में हुई थी,
पहली मस्जिद मस्जिद कुबा थी। मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी की तमीर की गई। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुखात कायम हुआ था, यानी कि जो भाई भाई बने थे। मदीना का पहला तहरीरी आयन जो था वो मिसाक मदीना कहलाता है। हजरत उमर ने हिजरी कैलेंडर नाफज किया था। इसके जो नतीजा है वो ये है कि हिजरत मदीना इस्लामी तारीख का वो अजीम मोड़ है जिससे एक मजलूम जमात को एक मुनज़्ज़म, आज़ाद और बावकार उम्मत में तब्दील किया जाता है। इस वाक़े ने इस्लामी रियासत, अखुवत, अदल, मसावत और इज्तिमाई निज़ाम की बुनियाद रखी थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके MCQ देखते हैं। और मैं एक चीज़ आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि ये लेक्चर 8 है, लेक्चर 7 नहीं है। कि ये ना हो कि आप कहें कि कल भी लेक्चर 7 है, ये भी लेक्चर 7, उसको रिपीट नहीं कर रहे। कल हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफ्टर नबूवत क्या मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में पेश आई थी वो हमने पढ़ा था, और आज हम हिजरत मदीना को डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम हिजरत हबशा को पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता गज़वात स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास, तो उसको पढ़ेंगे, फिर इस्लाम के रुकन वो सारे फिर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास हिजरत मदीना का ये क्वेश्चन आंसर है। हिजरत मदीना किस साल किस ईस्वी में हुई थी? तो ये 622 में हुई थी। ठीक है, 622 में। उसके बाद है हिजरत मदीना नबुवत के किस साल हुई थी? तो ये 13वें साल, मतलब 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे थे और फिर बाकी के 10 साल मदीना में गुजारेंगे। हिजरत का लग़वी मानी क्या है? छोड़ देना या जुदा होना। हिजरत मदीना का बुनियादी मकसद क्या था? तो उस दीन की हिफाजत और आज़ादी। उसके बाद है हमारे पास मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? यस्रब। मुसलमानों ने सबसे पहले किस शहर की तरफ हिजरत की थी? तो मदीना की तरफ, सॉरी हबशा की तरफ। ये कल मैंने आपको उसका हबशा का जो कल टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से भी पढ़ेंगे। और हबशा की तरफ जो मुसलमानों ने किया था हिजरत की थी, पहले ही 615 में की थी और दूसरी हिजरत 616 में की थी। और यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मुसलमानों ने सबसे पहले हिजरत किस शहर की तरफ की थी? तो हबशा की तरफ की थी। हिजरत मदीना से पहले कौन सी बुनियाद बनी थी? तो बैत उक़बा सानिया। ठीक है, हिजरत मदीना से पहले जो है ऑब्वियसली वो बैत करके गए थे, तो इस तरह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे हिजरत करके गए। पहली बैत उक़बा में कितने अफराद शरीक थे? तो 12। दूसरी बैत उक़बा में कितने मर्द शरीक थे? तो 73 मर्द थे और 2 औरतें थी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कुरैश ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मशरा कहाँ किया था? दारुल निदवा में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़ किसने पेश की थी? अबू जाहिल ने, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। और सबसे पहले मुखालफत भी इसी ने ही की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा पहाड़ी पे नबूवत का ऐलान किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इतला किस फरिश्ते ने दी थी? हज़रत जिब्राइल ने। हिजरत की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए? तो हज़रत अली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हिजरत कौन थे? हज़रत अबू बकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के आगाज़ में किस गार में पनाह ली? तो गारे सोर। गारे सोर में कितने रातें क़याम फरमाया? 3। गारे सोर के दहाने पर किसने जाला बनाया था? तो वो मकड़ी ने। और गारे सोर के दरवाजे पर किस परिंदे ने घोंसला बनाया? तो ये हमारे पास है कबूतर ने। हज़रत अबू बकर को गार में किस बात की फ़िक्र थी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की। गारे सोर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से क्या फरमाया? गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और ये पूछा जाता है कि किस सूरत की आयत है? सूरत तौबा की आयत नंबर 40। गारे सोर में मक्का की खबरें कौन पहुँचाते थे? तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना कौन पहुँचाती थी? हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर। हज़रत अस्मा को किस लक़ब से याद किया जाता है? यह हमारे पास है ज़ातल नताकीन। और कदमों के निशानात मिटाने के लिए बकरियां कौन चराते थे? तो हज़रत आमिर बिन फहीरा। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आप हज़रत अबू बकर के जो गुलाम थे उनका नाम क्या था? तो आमिर बिन फहीरा, हज़रत आमिर बिन फहीरा था।
मदीना पहुंचने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सा अहम काम किया था? मस्जिद नबवी की तमीर फरमाई थी, क्योंकि जाहिर है वहां पे मदीना हिजरत करके गए थे तो कोई तो ऐसी जगह बनानी थी ना जहाँ पे बैठ के इस्लाम की तालीम दी जा सके। घर घर जाके तो नहीं दे सकते थे, तो इस वजह से, और वहाँ पे लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे थे और इतनी ज्यादा बात भी मानते थे। मस्जिद नबवी की सरजमीन किसके बच्चों की मलकियत थी? सैल और सुहेल। ये भी कल मैंने आपको बताया था। मस्जिद नबवी की तमीर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया? खुद भी ईंटें उठाई थी। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा किस नाम से मशहूर है? तो वो मौखात मदीना। मिसाक मदीना नहीं है, मौखात मदीना है। मिसाक मदीना मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान मुआहदा हुआ था, और जो मौखात मदीना है वो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान हुआ था, और मिसाक मदीना यहूद कबैल और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। मदीना के मुसलमानों को क्या कहा जाता है? अंसार। मक्का के हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। मौखात मदीना का बुनियादी मकसद क्या था? तो मुहाजिरीन की मदद और अखुवत कायम करना। अच्छा, उसके बाद मदीना का पहला तहरीरी ऐन क्या कहलाता है? तो मिसाक मदीना। मिसाक मदीना किसने मुरत्तब फरमाया? तो ये हमारे पास है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मिसाक मदीना का बुनियादी मकसद क्या था? अमन, अदल और महजबी आज़ादी कायम करना। मिसाक मदीना में किन तबकात को शामिल किया गया था? मुसलमान, यहूद और दीगर कबीले जितने भी मदीना में आबाद थे। मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम को क्या हासिल हुआ? तो सियासी और माशरती इस्तेकाम। हिजरत के बाद मुसलमानों को सबसे बड़ी नेमत क्या मिली थी? तो महजबी आज़ादी। मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम की पहली रियासत कहाँ कायम हुई थी? तो मदीना में। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की पहली बड़ी जंग कौन सी थी? तो वो थी बदर। ठीक है, ये हम गज़वात 1 बाय 1 पढ़ेंगे। गज़वात से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे। गज़वा बदर हिजरत के किस साल पेश आया था? तो दूसरे साल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम क्या था? तो किस्वा। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जहाँ बैठी वो जगह बाद में क्या बनी थी? तो मस्जिद नबवी उसी जगह पे ही बनी थी। हिजरत मदीना के बाद अजान का आगाज कब हुआ? 1 हिजरी में। ठीक है, मदीना में हुआ था। कब हुआ था? तो ये मदीना में 1 हिजरी में हुआ था। इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन है? हजरत बिलाल हबशी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किस बुनियाद पर माशरा कायम किया था? ईमान और अखुवत। हिजरत के बाद मुसलमानों की इज्तिमाई कुव्वत में क्या इजाफा हुआ था? सियासी, अस्करी और मशरती ताकत। कुरान मजीद में लाताज़न इन्नल्लाहा माआना तो किस मौके पर फरमाया गया है? गारे सौर में हिजरत के दौरान। और इस आयत का जो तर्जुमा है ये किस सूरत में मज़कूर है? तो ये सूरत तौबा में। हिजरत मदीना का सबसे बड़ा तारीखी नतीजा क्या निकला था? तो वो ये था इस्लामी रियासत का क़याम और इस्लाम का फ़रोग़। हिजरत मदीना इस्लामी तारीख में किस हैसियत से अहम है? इस्लामी रियासत के क़याम का आगाज़। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों का मरकज़ कौन सा शहर बना था? मदीना मुनव्वरा। मदीना पहुंचने से कबल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर क़याम फरमाया? कुबा के मकाम पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कितने दिन क़याम फरमाया था? तो 4 दिन। 4 दिन कुबा में रहे थे। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कितने दिन रहे थे? 4 दिन रहे थे। मस्जिद कुबा की फजीलत किस इतबार से है? तो ये है कि इस्लाम की ये पहली मस्जिद है। हिजरत के बाद मुहाजिरीन की मदद करने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? अंसार। हिजरत के दौरान हज़रत अबू बकर के हमराह गारे सौर में कितने अफराद थे? तो 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मतलब के हज़रत अबू बकर थे, और साथ में वो जो रास्ता बताने वाला बंदा था वो तो बस रास्ता बता के वापसी ही चला गया था, वो साथ नहीं बैठ। हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम क्या था? तो अबू कहाफा ये पूछा जाता है। हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ये याद रखना है। अबू कहाफा था इनका नाम। हज़रत अस्मा किस सहाबी की बहन थी? तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर की। हिजरत के सफ़र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रास्ते की बजाय कौन सा रास्ता इख्तियार किया था?
जनूबी रास्ता। गारे सौर मक्का के किस सम्मत वाक़या है? तो ये जनूब में, यमन वाली साइड पे, मैंने पहले भी ये आपको बताया हुआ है। गारे सौर में क़याम का मकसद क्या था? दुश्मनों से महफूज रहना। सुराका बिन मालिक को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बादशाह के कंगन पहनने की बशारत की थी? तो किस्रा ईरान। ठीक है, किस्रा ईरान। किस खलीफा के दौर में सुराका को ये बशारत पूरी हुई? सुराका की ये बशारत पूरी हुई थी तो हज़रत उमर के दौर में। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का आगाज़ किस सहाबी के घर हुआ था? तो हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर। हज़रत अबू अयूब अंसारी का ताल्लुक़ किस कबीला से था? तो खज़रज से। ठीक है, दो कबीले थे ना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करते थे, औस और खज़रज। और आप जो हज़रत अयूब अंसारी के घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, तो ये जो अयूब अंसारी थे वो खज़रज कबीले से थे। मुखाते मदीना ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस तबके को पहुँचाया था? तो मुहाजिरीन को। मिसाक मदीना में किस असूल को बुनियादी हैसियत दी गई थी? तो अदल, अमन और बहमी तामुन। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम की दावत किस अंदाज में फैलने लगी थी? खुले आम और मुनज़्ज़म अंदाज में। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को सबसे बड़ी सियासी कामयाबी क्या मिली थी? आज़ाद इस्लामी रियासत इनको मिल गई थी। कुरान मजीद में मुहाजिरीन की फजीलत किन सूरतों में बयान की गई है? तो सिर्फ सूरत बकरा में नहीं, सिर्फ सूरत बकरा में उसे पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास सूरत तौबा, अनफाल, निसा और हशर। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की पहली इज्तिमाई इबादतगाह कौन सी बनी थी? तो ये हमारे पास है मस्जिद नबवी। हिजरत मदीना ने मुसलमानों में किस जज्बे को सबसे ज़्यादा मजबूत किया? अखुवत और इत्तेहाद। हिजरत मदीना के बाद इस्लामी माशरे की बुनियाद किन असूलों पर रखी गई थी? ईमान, अदल, मसावात और अखुवत। हिजरत मदीना का सबसे अहम तारीखी असर क्या था? तो ये इस्लाम का एक मुकम्मल दीन और रियासत के तौर पर ज़हूर हुई। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को सबसे पहले किस नेमत का हसूल हुआ था? तो महज़बी आज़ादी का। ये बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे इस्लामी रियासत की सबसे बाकायदा बुनियाद कहाँ रखी गई थी? मदीना में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर मुसलमानों के दरमियान किस जज्बे को फ़रोग़ दिया था? तो अख़ुवत और मसावात को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, आप इसको गौर से अगर पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर बेशक आपको सेम लग रहा है, लेकिन हर एक क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो घुमा फिरा के दी हुई है। ठीक है, पहले जैसी स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन की नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं। मदीना में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम करने को क्या कहा जाता है? तो ये मुखाते मदीना। मिसाक मदीना का बुनियादी मकसद क्या था? मुख्तलिफ कबाइल में अमन और इंसाफ कायम करना। मिसाक मदीना को दुनिया में किस हैसियत से देखा जाता है? अव्वलीन तहरीरी आयनों में से एक है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की पहली इबादतगाह कौन सी थी? तो ये थी हमारे पास मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि क्या थी? इबादत, तलीम, अदल और मुशावरत का मरकज़। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम की दावत किस अंदाज में जारी हुई? इलानिया और मुनज़्ज़म अंदाज में। मदीना में इस्लामी माशरे की बुनियाद किस असूल पर रखी गई थी? ईमान और तकवा की बुनियाद पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फरमान का ताल्लुक़ किस वाक़या से है? तो गारे सौर से। मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया था ये गारे सौर में फरमाया था। और कुरान मजीद की किस सूरत से ये आयत ली गई है? सूरत तौबा से। हज़रत अली ने हिजरत की रात कौन सा अजीम कारनामा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। हज़रत अस्मा ने हिजरत के दौरान कौन सी अहम खिदमत अंजाम दी थी? तो खाना पहुँचाया और अपने दुपट्टे से थैला बांधा। हज़रत अस्मा को किस लक़ब से याद किया जाता है? ज़ातल नताकीन। हिजरत के दौरान रास्ता दिखाने वाले रहनुमा कौन थे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अरीकत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़याम के लिए किस सहाबी के घर को मुंतखब फरमाया था? हज़रत अबू अयूब अंसारी। सुराका बिन मालिक को कौन से अजीम बिशारत हुई थी? किसरा के कंगन पहनने की बिशारत। हिजरत मदीना के बाद इस्लाम की पहली बड़ी जंग कौन सी थी? तो बदर। गज़वा बदर किस हिजरत के कितने साल बाद हुई थी?
तो हिजरत के 2 साल बाद, ठीक है, हिजरत के 2 साल बाद 2 हिजरी में हुआ था। हिजरत मदीना ने मुसलमानों को क्या अता किया था? आज़ादी, इत्तेहाद और इस्लामी रियासत। इस्लामी हिजरी तकवीम की बुनियाद किस वाक़ये पर रखी गई थी? तो हिजरत मदीना पर। हिजरत मदीना के नतीजे में इस्लाम की हैसियत क्या बनी? तो एक मुकम्मल दीन और सियासी निज़ाम। तमाम मुसाबकती इम्तहान में जो हिजरत मदीना का मौजू है वो क्यों अहम है? वो ये पूछा जाता है कि इम्तहानात में जो आपके पास मतलब कि ये हिजरत वाला है, ये इस्लामी इससे रिलेटेड है, तो वो इस्लामी रियासत, सीरत, कुरान और इस्लामियात में गहरे ताल्लुक की वजह से। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये वैसे ही इसमें ऐड है, एक्स्ट्रा एक तरह से कह लें। हिजरत मदीना से मुसलमानों को सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? अल्लाह पर तवक्कल, कुर्बानी, सब्र, अखुवत, दीन की खातिर हर कुर्बानी देना। ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी दिया करें। आप के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें। ये एक आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है मेरे लिए, मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा मतलब इसका सिला दे दिया करें। बाकी अगर आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सेशन हमारा होता है लेकिन उसके लिए वो पेड है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते वो आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन बाकी जो आपकी व्हाट्सएप पे तैयारी कराई जाती है, आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और इन्हीं लेक्चर के नोट्स और बाकी जो पास पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है जो पास पेपर PPSC की बुक है वो आपके पास आपको तकरीबन 2500-2200 की इतने में मिलती है, लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पास पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं और रोज़ाना की बेस पे 2 पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो कैंडिडेट हमारे पास ऐड है उन पर ज़्यादा बर्डन भी ना बढ़े और इतना इनको प्रोवाइड किया जाए सिलेबस जितना वो इजीली कवर कर सके। 100 MCQs हम वन लाइनर के करते हैं, एक हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर करते हैं, उसके जितने MCQs बन पाते हैं 100 भी बन जाते हैं, 60 भी बन जाते हैं, 50 भी बन जाते हैं, वो हम साथ में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब टॉपिक हमने अच्छे से तैयार किया होता है तो वो हमारे MCQs जो है वो ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम देख लेते हैं। और वन लाइनर जो है वो भी उसके 100 MCQs रोज़ाना करते हैं ताकि हमें पता चले जो वन लाइनर है वो ऑब्वियसली मतलब कि अलग अलग मतलब उससे लेकर बनाया गया होता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट से लेकर बनाई गई होती है। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना उसमें रिपीट हो रहा है, यानी हमारा जो इस्लामिक सब्जेक्ट है इस्लामियात का वो किस हद तक हमारा तैयार हो चुका है, तो वो इसकी रेपिटेशन के लिए। बाकी पास पेपर जो है वो तो हम ओवरऑल कर ही रहे हैं ताकि हमारे जो पास पेपर से अगर कोई 5-6 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो वो हमारे स्किप ना हो। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।